السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست محمد عامر۔ اگر بات کری جائے اسلام کے عظیم حکمران کی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے، جنہوں نے عیسائیوں سے یروشلم واپس لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری داستان جانیں گے، جس کا نام ہے داستان صلاح الدین۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے مہان جنگجو میں سے ایک تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1137 ٹرکٹ میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد نجم الدین ایوبی ٹرکٹ کے حکمران تھے۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی ساری جنگی صلاحیت اپنے والد سے ہی سیکھے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی ہوشیار انسان تھے، جنہیں امن پسند تھا۔ وہ کبھی بھی لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی نے موڑ تب لیا جب وہ اپنے چاچا کے ساتھ ایجپٹ گئے تھے اور وہاں کے دشمنوں سے انہوں نے جنگ بھی کری تھی۔ اپنے چاچا کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ کے کمانڈر یعنی وزیر بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی کبھی بھی بڑے محلوں میں نہیں رہے، وہ مسجد کے پاس ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کئی جنگیں لڑی اور انہوں نے فتح کیا۔ انہوں نے بڑی بہادری سے تقریباً 20 سالوں تک کروسیڈرز کا سامنا کیا اور انہیں ہار ماننے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے یورپ کے سارے طاقتوں کا ایک ساتھ سامنا کرے، وہ طاقتیں جو یروشلم کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے آئی تھی۔ دوستو، اتہاس کار کروسیڈرز تاریخ کی سب سے لمبی جنگوں میں سے ایک جنگ مانتے ہیں، ساتھ ہی وہ جنگ بھی تھی جس میں بہت زیادہ خون بہا تھا۔ کافی مشقتوں کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ سے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ میں اتنے بار کروسیڈرز کا نام لے چکی ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کروسیڈرز کا مطلب کیا ہے؟ مذہب کی لڑائی۔ دوستو، یہ جنگ صرف ایک شہر کے لیے لڑی گئی تھی جو کہ یروشلم، جو کہ تینوں مذہبوں یہودی، عیسائی اور اسلام میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ عیسائیوں کے لیے وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دین کو پھیلایا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ جگہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ 15 جولائی سن 1099 یہ اسلام کی تاریخ کا اندھیرے سے بھرا دن تھا، کیونکہ حضرت عمر کے یروشلم کو فتح کرنے کے 462 سال بعد یروشلم پھر سے عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا تھا۔ اس دن مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا جس کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دن تقریباً 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ سڑکوں پر اتنا خون تھا، گھوڑے چل نہیں پا رہے تھے، وہ پھسل جا رہے تھے۔ پورے شہر میں کئی ساری مسجدوں کو توڑا گیا۔ صرف مسلمان نہیں، عیسائیوں کو بھی اس سے نقصان ہوا، جن کا کلچر گریک، جارجین اور ارمینین تھا۔ ان پر کیتھولک چرچ کا کلچر تھوپا جانے لگا۔ یہ خبر سن کر کے مسلمانوں کی تیسری مقدس جگہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ عباسید خلافت، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کروسیڈرز کا سامنا کر سکے۔ یروشلم کے علاوہ کروسیڈرز نے کئی اور شہروں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ میڈیٹرین کوسٹ کے پاس 4 کروسیڈر سلطنت نے اپنی حکومت قائم کر لی، لیکن ان کروسیڈرز کا سامنا سلجوقوں سے بھی ہوا، جنہوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور سلجوق جو کہ بہت خطرناک تھے۔ سلجوقیوں نے کروسیڈرز کو بے حد بری طرح تباہ کر دیا اور نہ جانے کتنے کروسیڈرز کے سپاہی اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد ہماری کہانی میں صلاح الدین ایوبی آتے ہیں۔ بچپن سے بڑے ہوشیار اور بہادر قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے بہترین اسلامک اسکالر سے اپنی تربیت حاصل کی۔ اگر دیکھا جائے تو شروعات میں صلاح الدین ایوبی کا من اسلامک اسٹڈیز اور پڑھائی میں زیادہ لگتا تھا، لیکن ان کے چچا نے انہیں ایجپٹ بھیج دیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی بے حد جوان تھے۔ جب 1169 میں صلاح الدین ایوبی نے ایجپٹ میں وزیر کی گدی کو سنبھالا تو ان کی مذہبی تعلیمات نے ان کی گورنمنٹ پالیسیز کو بہت متاثر کیا، لیکن ایک شخص جسے صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت پسند نہیں آ رہی تھی، وہ تھے نور الدین، جو کہ شام میں تھے۔ ایجپٹ اور شام کے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ جنگ ہونا طے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 1174 میں زنگی بیماری سے چلتے وفات پا جاتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت ایجپٹ کے ساتھ ساتھ سیریا پر بھی قائم
खत्म हो जाती है। मुसलमानों की जमीन जो अलग अलग थी उसे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर से एक कर दिया और क्रूसेडर्स के यरूशलेम के सल्तनत एक मजबूत इस्लामिक रियासत से घिर चुकी थी। 1170 और 1180 में पूरी मुस्लिम दुनिया एक हो गई थी और ईसाई अलग अलग हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सन 1099 में था जब सारे ईसाई एक हो गए थे और मुसलमान एक नहीं थे। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी जंग करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कई सारे मुआहदे किए यरूशलेम की सल्तनत के साथ, लेकिन रोनाल्ड नाम का ईसाई हुक्मरान इन मुआहदों को तोड़ दिया। उसने कई सारे मुसलमानों का खून बहाया, यहाँ तक कि वो मक्का पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जिसके बाद 1180 के दशक में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के फौजियों ने क्रूसेडर्स का मुकाबला किया और इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मुसलमानों और ईसाइयों में दुश्मनी बढ़ती गई और बात जंग तक पहुँच गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी और यरूशलेम की सल्तनत के बीच जंग होना तय था और 1187 में ये जंग लड़ी गई जिसे आज हम हातिन की जंग के नाम से जानते हैं। और ये जंग में सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर्स को खत्म करके रख दिया और फिर से मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया, जिसका इंतजार मुसलमानों को पिछले 88 ईयर्स से था। और इसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने हजरत उमर के कदमों के निशान पर चले, जिन्होंने सन 637 में यरूशलेम को फतह किया था। लेकिन मुसलमानों ने ईसाइयों का खून ना बहाया, शहर में कत्ले आम ना हुआ और हर किसी को रहने और अपने दीन की पैरवी करने का पूरा हक था। अब जो यरूशलेम था वो पूरी तरह से मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था, तो जाहिर सी बात है ये खबर सुनने के बाद ईसाइयों को गुस्सा आना लाजमी था। यूरोप में उन्होंने अपनी फौजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जर्मनी और फ्रांस के हुक्मरानों ने अपनी फौजें तैयार करना शुरू कर दी कि हमें फिर से यरूशलेम को वापस लेना है। और इंग्लैंड के हुक्मरान रिचर्ड ने भी अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका मुकाबला सलाउद्दीन अय्यूबी से है। उन्होंने कई सारे जंगे सुल्तान के खिलाफ लड़ी और भारी नुकसान इन्हें उठाना पड़ा। लेकिन अब मुश्किल बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब पूरे यूरोप के सारी फौजें मुत्तहिद होके आ गई और सलाउद्दीन अय्यूबी से मुकाबला करने के लिए सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज जो अब तक सलेबियों का सामना कर रही थी वो अब थक चुकी थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जिसके बाद ये तय हुआ कि अब और खून नहीं बहेगा और किसी का भी कत्ल नहीं किया जाएगा। एक मुआहदा हुआ जिसके तय सुल्तान को 2 लाख सोने के पीसेस देना था। थोड़ी देर हो गई जिसकी वजह से गुस्से में आकर रिचर्ड ने बेबस मुसलमानों का कत्ले आम किया। जब ये खबर सलाउद्दीन अय्यूबी को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुसलमानों का खून के बदले लेने की कसम खाई। 150 मील समंदर का रास्ता तय करने के बाद सुल्तान ने इनके खिलाफ कई जंगें लड़ी और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद हुक्मरान रिचर्ड वो मुआहदे के लिए मान गया और सुल्तान भी मान गए। उसके बाद 1192 में एक समझौता हुआ और सारे क्रूसेडर्स को यरूशलेम के बाहर निकाला गया। इनके लिए अल्फाज फरमाए मौलाना तारिक जमील ने, जिस कौम के बच्चे नाचने गाने को अपना शौक बना ले उस कौम से नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होंगे, तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होंगे, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होंगे जो अकेले पूरे यूरोप का सामना करे। आपको पता है हातिन की जंग में तकरीबन 7 सल्तनत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ आ गई थी। पूरा यूरोप एक तरफ था और पूरा यूरोप इनके खिलाफ था। इधर तन्हा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थे। इसके बावजूद उन्होंने पूरे यूरोप को एक साथ शिकस्त दी। रोनाल्ड एक बादशाह था जिसने हज पर जाने वाले काफिले पर हमला किया और हाजियों को कैद कर लिया और कहने लगा कि बुलाओ अपने नबी करीम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तब जब हातिन की जंग हुई है उसके बाद बड़े बड़े बादशाहों को मुसलमानों के हाथों कैद किया गया, जिसमें रोनाल्ड भी था। तकरीबन 12 बादशाह कैद हुए और सब प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सबको पानी पिलाया, रोनाल्ड को नहीं पिलाया था। उनमें से एक हुक्मरान था, उसने अपने में से थोड़ा सा पानी बचाकर रोनाल्ड को दे दिया था
था। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि ये पानी तुम पिला रहे हो, मैं नहीं पिला रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम में जब आप पानी पिलाते हैं तो ये अमन की निशानी होती है। रेनॉल्ड को इस्लाम की दावत दी गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने कसम खाई थी जब तूने हाजियों के काफिले पर हमला किया था और कहा था कि बुलाओ अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मैंने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं अपने हाथों से तेरी गर्दन उतारूंगा। ले आज मोहम्मद का ये गुलाम तेरी गर्दन उड़ाने जा रहा है। और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसकी गर्दन उड़ाई तो बाकी के बादशाहों ने कपकपाने लगे। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, हमारा इस्लाम नहीं है, हमारा इस्लाम में बादशाहों के साथ बादशाहों वाला सलूक ही किया जाता है। लेकिन ये अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ गया था। और ये अल्फाज सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के, अगर तुम्हें किसी कौम को बिना जंग के बर्बाद करना है तो उस कौम के नौजवानों में अय्याशी को आम कर दो और वो कौम बिना जंग के ही बर्बाद हो जाएगी। आप ध्यान दीजिए, जब तक मुसलमानों ने दीन के रास्ते पर हुकूमत की है तब तक शान से हुकूमत की ही है, लेकिन फिर उसके बाद मुसलमान अय्याशियों में डूब गए। अल्लाह ने अरबियों को ताकत दी थी हुक्म करने की, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक थे। लेकिन अरबियों ने अय्याशी में डूब गए और खुद की ताकत को खत्म कर बैठे। उस वक्त भी अरबियों के हाथ से निकला था ये यरूशलेम। अरबियों में इतनी ताकत नहीं बची थी फिर से वापस ले सके। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने वापस लेकर दिया। और फिर इनके बाद क़यादत किसके हाथों में? तुर्कों के हाथों में आई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहने को तो बादशाह थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये सब जानते हैं। बड़ी सख्तियां देखी उन्होंने, अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और आज भी यरूशलेम मुतासिर है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का। सुल्तान सलाउद्दीन की बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, हातिन की जंग में तकरीबन 8 सल्तनत एक साथ आई थी और इधर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अकेले थे। इसके बावजूद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सबको शिकस्त दी और इतने रहमदिल थे कि उन्होंने सबको छोड़ दिया। अब कोई भी आकर यरूशलेम में इबादत कर सकते हैं, कोई भी आकर रह सकते हैं। ये रहमदिली थी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही तारीखी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी राय कमेंट में जाहिर करिए। खुदा हाफिज।